Good morning, students. Now come to the next topic of indefinite integration. There are some special integrals. Now we have there 7 examples or some formulas which must be used in various examples, and that formulas are written on this board. So the first formula is integration dx divided by x square plus a square, or a square plus x square is equals to 1 by a into tan inverse of x by a plus c. The second formula is integration dx divided by x square minus a square, which is equals to 1 by twice a log of x minus a divided by x plus a plus c. The third formula is dx divided by a square minus x square is equals to 1 by 2a into log of a plus x divided by a minus x plus c. Fourth formula is dx divided by under root of a square minus x square sin inverse of x by a plus c. Fifth formula is dx divided by under root of x square plus a square, or a square plus x square is equals to log of mod of x plus under root of a square plus x square plus c. The sixth formula is dx divided by under root of x square minus a square is equals to log of x plus under root of x square minus a square plus c. And the seventh formula is dx divided by x into under root of x square minus a square is equals to 1 by a sec inverse of x by a plus c. अब यह हमें क्या करना है, इसको लर्न करने के लिए इसको हमें प्रूफ करना है, बट इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो 3 फार्मूलाज है, ये 3 फार्मूलाज जिनमें रूट्स नहीं है, ये 3 फार्मूला जिनमें रूट्स है, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। अभी ध्यान में रखने के लिए हमारे पास दो बेसिक डेरिवेटिव के फार्मूले हैं। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sin इनवर्स x की डेरिवेटिव जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दो फार्मूला को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये फार्मूला को लर्न करने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली इसके प्रूफ क्या होंगे, सो वी लर्न, we take the proof. The first proof we take here I is equals to integrations of dx divided by x square plus a square. Now we take here for x is equals to a times tan of theta. अगर हम x is equals to a tan theta पुट अप करते हैं तो x को अगर इधर लेके जाएंगे तो x by a हो जाएगा, और थीटा लेते हैं तो इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे theta is equal to tan inverse of x by a. ओके, नाउ वी डिफरेंशिएट दिस टर्म। सो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, x की जगह मिलेगा हमें dx is equals to a will be as it is, and the derivative of tan theta is sec square of theta. Okay, now when we put these terms here, so we get the integration I is equals to integration dx की जगह क्या मिलेगा हमें a times sec square of theta divided by x square, sorry, instead of x we have here a into tan of theta and whole square plus a square. So as we know that here a square is common and a is common, we take here a divided by a square which is constant out of the integration, and remaining here sec square of theta divided by tan square of theta plus 1. So into d theta, into d theta, d theta, into again d theta. Now so we get here 1 plus tan square theta which is equals to again a sec square theta, and that's why we have here 1 by a integrations of sec square theta divided by sec square of theta into d theta. Sec square theta remains cancel, 1 by a integrations of d theta, and d theta becomes theta. So that's why we have here I is equals to 1 by a into theta plus c. Here integration of d theta becomes theta and d plus c, as theta is equals to tan inverse of x by a. Resubstituting the value, we have here I is equals to 1 by a times tan inverse of x by a and then plus c. So this is our integration. The first formula, integrations of, here I is what, so we can write here I is integrations of dx divided by x square plus a square which is equals to 1 by a times tan inverse of x by a plus c.
So this is the integration. Look at this one, everyone. So integration, and we have put here x, and then substituting the value, we get the formula dx divided by x square plus s square. अभी इसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं? सो सिंपल एग्जांपल्स इसके ऊपर देखेंगे हम। एग्जांपल्स कैसे पूछ सकता है आप, जैसे कि आपको पूछा गया हुआ है x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x square plus 49. So as we know that 49 is a 7 square, so we can write it as dx divided by x square as it is, okay, and 49 is a 7 square, so we get here plus 7 square. तो ये हमारा ये फार्मूला हो गया है। तो इसमें अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/7 आ गया यहाँ पे, जो कि 1/a है, और डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/7 एंड देन प्लस c। इतना सिंपल होता है। अब इसमें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? तो देखो वेरिएशंस कैसे हो सकते हैं, तो वेरिएशन में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है dx डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7 और 5, एन एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 जो कि नॉट अ स्क्वायर, 5 जो कि नॉट अ स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, अभी हम कंसीडर कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो मैं 1/3 कांस्टेंट निकालूंगा बाहर। तो अगर 1/3 कांस्टेंट निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5/3। As we know that 5/3 is not a square, so I represent it as a 1/3 integrations of dx divided by 5/3 becomes under root of 5/3 and the square. ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखेंगे हम dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म वैसे भी आ रहा है। अगर हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ये हमारे पास 1/3 एज इट इज है, दिखा है ऐसे, ओके। सो 1/3 एज इट इज है इनटू 1/a यानी 1/√5/3 एज इट इज, एंड देन tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय √5/3 एंड देन प्लस c, ऐसे हो जाएगा। अभी इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व के बाद में हमें जो इंटीग्रल मिलेगा, तो इसका अगर हम इंटीग्रल निकालते हैं, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम √3 को कैंसिल करते हैं तो 5 3 जा 15, तो ये हो जाता है √15 एंड देन √3 becomes at upside tan inverse of √3x divided by √5 and then plus c. So this is our integration. So इस तरह से हम इस टॉपिक के जो भी एग्जांपल्स होते हैं इनको इस तरह से हमें करना होता है सॉल्व। खुश। नाउ नेक्स्ट द प्रूफ ऑफ, देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला कंसीडर किया, कंप्लीट हो गया है। अब ये सेकंड और थर्ड जो भी है ये दोनों ही आइडेंटिकल है, इनका प्रूफ सेम रहेगा। इनके प्रूफ में से कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम सेकंड में। सो प्रूफ ऑफ, तो वी हैव हियर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म है, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट बिकम्स x माइनस a इनटू x प्लस a, लाइक दिस। नाउ आई शिफ्ट द डिनोमिनेटर्स इनटू न्यूमरेटर। मैं क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं। तो जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, आई पुट दिस एज x प्लस a माइनस x माइनस a। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन, यहाँ पे हमने माइनस किया तो x और माइनस x तो कैंसिल हो गया, x माइनस x वैसे भी कैंसिल हो गया, और a माइनस माइनस प्लस a, तो a प्लस a वो बन जाता है 2a। तो इनडायरेक्टली हमने न्यूमरेटर में क्या किया, तो 2a लगाया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लगाएंगे 2a into dx and remaining here x minus a into x plus a into then dx. Now separatizing the integrals, we have here 1/2a
इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए dx, देन माइनस इंटीग्रेशन x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू dx, दैट इज द सेपरेशन ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x प्लस ए वैसे भी कैंसिल हो रहा है, इस इंटीग्रल में x माइनस ए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1/2a इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस ए, sorry, here should be the x minus a, and then minus integral dx divided by x minus a should be cancelled, remaining x plus a. As we know that 1 by x अगर होता है तो उसका इंटीग्रल होता है log of x, so we have here 1/2a times इंटीग्रल सेपरेट इंटीग्रेशन अगर लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें log of x minus a minus log of x plus a and then plus c using the logarithmic form, log of x minus a minus log of a minus log b, so log a minus log b becomes log of a by b, and that's why we have here I. What is I? I is equals to integrations, therefore integration dx divided by x square minus a square is equals to क्या मिलेगा 1/2a become as it is into, here should be the log of, so we have here log of, so a minus b, अगर log a minus log b है तो log of a divided by b हो जाता है, तो ये हो जाएगा x minus a divided by x plus a और ये plus c, so ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म, दिस इज द सेकंड। ओके, सो इस पे अगर एग्जांपल्स पूछेंगे तो वो कैसे पूछेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। देखो ये पूरा हमारा प्रूफ है, इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे और इसके डिपेंडिंग एग्जांपल्स को क्या होते हैं वो देखेंगे कुछ। सो इसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे रहते हैं वो देखेंगे। अभी हमने इसका प्रूफ किया है, सेम प्रूफ इसका भी है, ये भी फॉर्मूला सेम है, तो इस पे डिपेंडेंट एग्जांपल रहेगा लाइक दिस। तो देखो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो dx डिवाइडेड बाय 9x² माइनस 16, जो कि ये फॉर्म है, और सेकंड एग्जांपल लेते हैं इस फॉर्म पे। तो इस फॉर्म पे हमने एग्जांपल लिया dx डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x², जो कि इस एग्जांपल पे, इस टाइप के एग्जांपल भी देखेंगे। एग्जांपल सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन वेरी वन कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। लेट अस कंसीडर हियर I is equals to dx डिवाइडेड बाय 9x² माइनस 16। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक बेसिकली दूसरा टाइप भी है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से 9 को कांस्टेंट निकालते तो 1/9 कांस्टेंट निकल गया बाहर। अभी क्या मिलेगा हमें, 9 को कांस्टेंट निकल गया, रहेगा हमारे यहाँ पे x² और ये बन जाएगा -16/9। ओके, डिवाइड करना है। अभी 16/9 क्या है, किसका स्क्वायर है, तो 4/3 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/9 into dx डिवाइडेड बाय x² माइनस 4/3 एंड स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2a log of x minus a डिवाइडेड बाय x plus a, तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ऑलरेडी हमारे पास 1/9 है, फिर से यहाँ पे आ जाएगा into 1/2 into a, तो a होता है 4/3, ओके, देन into log of न्यूमरेटर में बनेगा हमें x माइनस a, तो x माइनस 4/3 और डिवाइडेड बाय x प्लस a, तो x प्लस 4/3 एंड देन प्लस ये हो जाएगा, एंड देन वी सॉल्व इट, सो 3 2 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 3 2 जा 6 4 जा 24, सो ये हो जाएगा 1/24। वंस अगेन सी, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24, एंड देन लॉग ऑफ, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 into x, ये बन जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 एंड देन प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। इतना सिंपल, इतने सिंपल एग्जांपल्स होते हैं इस पे डिपेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऑल जो भी स्टूडेंट्स है इस टॉपिक को अगर अच्छे से ये 7 फार्मूलाज अगर अच्छे से लर्न करते हो तो ये जो फार्मूलाज है आपको थ्रू आउट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। अभी इसी को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा और दूसरा एग्जांपल होता है, दूसरा पैटर्न होता है। देखो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये जो इंटीग्रल होता है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे I इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ से हमने अलग सॉल्व किया, यहाँ से हम लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय ये 3x, हम इसको कंसीडर करते हैं 3x स्क्वायर ये, और ये 16 को हम लिख लेते हैं 4 स्क्वायर, 3x स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली हमें फॉर्म मिलता है। तो अगर डायरेक्टली फॉर्म मिलता है तो क्या मिलेगा हमें 1/4, 1/2 into 4, 2 into 4 यानी 1/2 ये। देन log ऑफ mod ऑफ x, तो x की जगह यहाँ में हमारे पास है 3x, then -4 divided by 3x, then +4 and then +3. But one more important thing, that the coefficient of x is a 3. Okay, coefficient of x is a 3. So that's why I represent here प्लस से अगर लिखते तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, तो इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से एंड देन प्लस। क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है 3। अभी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 into 4 हो गया 8 और 8 3 जा 24, तो हमारे पास सेम आंसर मिलेगा 1/24 into 1/24 into log of mod of 3x minus 4 upon 3x plus 4 and then plus 3. So this is our integration. Same way, दोनों ही तरह से हमें सेम आंसर्स मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू द वन मिस्टेक, एंड दैट मिस्टेक इज अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है तो वो 1/3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम ये अगर मिस्टेक होती है तो इसको अवॉइड करना है, तो वो प्रोसीजर। Okay, now what is the second explanation? Now the explanation of this second example very easy example, ये भी example easy है, इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास है dx डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर। तो सिंपली x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो 5 को हम बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by 3/5 minus x square. Now 3/5 इसका स्क्वायर है, it is not a perfect square, so that's why we take the root and square. So 1/5 into dx divided by root of 3/5 and its square. Root and square are cancel, then minus x square. Using this formula 1/2a log of a plus x divided by a minus x, using that we can take here 1/5 into 1/2 into root of 3 upon 5 log of x plus a और a plus x। तो a क्या है यहाँ हमारे पास root of 3/5 plus x divided by root of 3/5 minus x and then plus c। ओके, इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है √5 है, √5 है, तो यहाँ पे 5 है √5 into √5, तो एक √5 ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग है √5। सो √5 into √3 तो बन जाएगा √15, तो ये होता है 1 into 2 under root of 15। ओके, वंस अगेन यहाँ से √5 कैंसिल हो गया, √5 रहेगा, √5 into √3 बनेगा वो √15 एंड देन log of mod। सो यहाँ पे अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास √3 प्लस √5x डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5x एंड देन प्लस 6। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। एवरीवन कीप इन माइंड। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं द फोर्थ फार्मूला इंटीग्रेशन इसका प्रूफ। तो ये हो जाता है, लेट अस कंसीडर हियर r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, सो इसके प्रूफ के लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है फॉर x इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ओके, सो अगर x इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन थीटा है तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये होगा, ये अगर जाकर डिवाइड होगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। नाउ डिफरेंशिएटेड, तो x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा dx, एक कांस्टेंट है एज इट इज, साइन के डेरिवेटिव होती है cos ऑफ थीटा इनटू d थीटा। पुट दिस बोथ हियर, द इंटीग्रेशन I becomes इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी है a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा
divided by under root remaining here a square minus what is x, so x is equals to a sin theta. ओके, तो अगर a sin theta को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इट बिकम्स स्क्वायर, सो इट बिकम्स a स्क्वायर टाइम्स sin स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन हम बाहर निकालते हैं तो रूट के बाहर निकलने के बाद में वो बन जाएगा a, तो ये हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन a cos ऑफ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे रहेगा 1 और ये हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ए वैसे भी कैंसिल हो गया. अभी हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर और रूट के साथ में कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाता है कितना, तो ये बनेगा हमारे पास में cos थीटा d थीटा अपॉन रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा फिर से cos थीटा, अगेन cos थीटा कैंसिल. Remaining what here integrations of theta and integration of theta becomes theta plus c. तो अगर हम थीटा को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होता है sin इनवर्स ऑफ x by a and therefore I is equals to put up this value, we have here sin inverse of x by a and plus c, and this is very simple explanation of this formula. What is I here? So the integration I becomes integral dx divided by under root of a square minus x square. So the explanation is very simple. Now how the questions are asked, इस पे क्वेश्चंस कैसे आस्क करेगा, कैसे पूछेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं. ये प्रूफ है हमारे पास, इस पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं 3 एग्जांपल्स जो कि इन तीनों फार्मूला पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल डिपेंड ऑन दिस फार्मूला, सेकंड एग्जांपल डिपेंड ऑन दिस फार्मूला एंड थर्ड एग्जांपल डिपेंड ऑन फिफ्थ फार्मूला. Okay, so now we have the solution. How we take the solution? I is equals to integrations of dx divided by root of 81 minus x square. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल फार्मूला है. 81 जो कि होता है 9 का स्क्वायर एंड दैट्स व्हाई वी कैन कन्वर्ट इट एज अ इंटीग्रेशन dx divided by under root of 9 square minus x square. It is directly in the form of this and therefore the solution I is equals to साइन इनवर्स ऑफ x by 9 एंड देन प्लस ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. बहुत इजी सॉल्यूशन है, विद इन अ सेकंड हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं. बहुत ही इजी होता है. सेकंड सॉल्यूशन सेकंड क्या है हमारे पास, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7 है. इतना इजी एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है. 3x स्क्वायर है, हम 3 को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशंस ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, हमारे पास रूट है ये 3x स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 3 और x का स्क्वायर एंड देन माइनस अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर होगा. तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला है कौन सा, ये वाला, ये इस फॉर्म में है dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है. तो ये क्या होता है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, log ऑफ व्हाट इज इंस्टेड ऑफ x की जगह हमारे पास क्या है, √3x है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें √3x देन माइनस अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा हमें, x प्लस, so under root of 3x and square minus under root of 7 and square into 1 by √3. कोई बताएगा क्यों होता है into 1 by √3? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल x नहीं है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, √3, इसलिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना है into 1 by √3 and then plus c. ओके, √3 को अगर हम सामने लिखते हैं तो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन I is equals to 1 by under root 3 into log of √3x minus under root of √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर एंड देन माइनस से √7 का स्क्वायर होता है 7 एंड देन प्लस c. तो ये बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड एग्जांपल एंड देन सॉल्यूशन ऑफ थर्ड एग्जांपल. Solution third.
Everyone concentrate. What is third example? Per x square plus 11. It is root of per x square plus 11. So जैसे हमने ये एग्जांपल को सॉल्व किया उसी सेम टाइप से हमें सेकंड एग्जांपल थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व करना है। तो थर्ड एग्जांपल बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पर एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ क्या मिलेगा हमें पर एक्स स्क्वायर है तो फॉर लिख लेते एक बार फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 11 मेरी इजी एग्जांपल। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे dx डिवाइडेड बाय पर एक्स स्क्वायर है तो रूट ऑफ पर एक्स यानी 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर। बहुत ही इजी एग्जांपल, ठीक है। तो ये आप इसको अगर हम डायरेक्टली इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो ये फार्मूला लगाने के बाद में हो जाता है log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे देखो x की जगह यहाँ पे है हमारे पास 2x, तो यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 11 का स्क्वायर एंड देन इनटू वंस मोर इनटू 1/2। डोंट टेक इट मिस्टेक हियर, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हमें लिखना है 1/2 इनटू, ओके हो गया, एंड देन प्लस c। सो फाइनली 1/2 सामने आ जाएगा 1/2 इनटू लॉग मॉड ऑफ 2x होता है तो 2x अगर है तो यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 एंड देन प्लस c। सो दिस इज अवर। इतने इजी तरीके से हम जो भी एग्जांपल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस टॉपिक्स वी कैन सॉल्व। ओके, थैंक यू।